السلام علیکم دوستو، تو میں آپ کا اپنا شہزاد خان اور اپنے اس نئے بلاگ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ سو گائز، آج کا بلاگ ہم کہیں گھومنے نہیں جا رہے۔ ہمارے محلے میں مدنی قافلے والوں نے میلاد کا پروگرام رکھا، تو ہم میلاد میں آئے، تو آج آپ کو دکھاتے ہیں ہماری نوری مسجد میں میلاد کا پروگرام اتنا اچھا رکھا گیا ہے، اور تھوڑی سی ویڈیو بڑی بن جائے گی۔ سو گائز پوری ویڈیو دیکھنا اور سپورٹ کرنا۔ ألقي فيها فوج سألهم خسرتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا قيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم مدینہ شادہ سبزن ابھی میرے حافظی مسجد کے معجم صاحب انشاءاللہ کلام کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ شکر ہادی عالم جناب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدام بھائی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. اٹھ کے جاؤ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو.
جس کا دیکھا ہوا مدینہ جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور خاصے کے طور پر دل میں ابو کوئی آرزو ہی نہیں دل میں ابو کوئی آرزو ہی نہیں دل میں ابو کوئی آرزو ہی نہیں یا محمد ہے یا مدینہ یا محمد یا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور پیار دینے والا کون ہے دنیا والے ہمارے نبی آقا کیا شعر فرماتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں پیارو دیتا تو بس مدینہ پیارو دیتا تو بس مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے کا دل فدا ہے مدینے والے کا دل فدا ہے مدینے والے کا دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے پیار دیتا میرا مدینہ انشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ جی کی آواز تو بہت پیاری ہے اچھی دیں گے آپ لوگ سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو پڑھنا آئے گا مجھے بھی پڑھنا آئے گا انشاءاللہ دیں گے نا جی بھائی جی اسلام بھائی نے اعتکاف کی نیت کر لی ہوگی اگر اس نے نہیں کی ہے تو اعتکاف کی نیت کر لیجیے نوے تو میں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
इंशाअल्लाह दुरूद पाक को मिलकर पढ़ते तो और पर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे मुर्शिद अमीर सुन्नत मौलाना इलियास कादरी का लिखा कलाम बहुत ही पॉपुलर यानी आसान और कई लोगों ने सुना है ये कलाम इंशाअल्लाह। आइए मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, देखो कैसा नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इसको मिल के पढ़ेंगे तो और इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलकी चाँद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। छाया है, छाया है, छाया है। इंशाअल्लाह मिलके दुनिया में आकर के आमद की खुशियां मनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। चार जंग हम दिए घी के जलाते जाएंगे, चार जानिब हम दिए घी के जलाते जाएंगे, यार सारे मोहल्ले को सजाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब ये आप जो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ना जब इस्लाम में पढ़े ना तो जिनके हाथ में परचम है ना वो परचम को उठा ले, जिनके परचम नहीं वो क्या करेंगे? हाथ उठा ले, हाथ। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हम नूर में जलाते जाएंगे, हम नूर के दीके जलाते जाएंगे, घर तो घर सारे मोहल्ले को सजाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब तुम्हारी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, नात खानी मौत से हमसे छुड़ा सकती नहीं। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तुम करो ने मिलादत की खुशी में रोशनी, तुम करो जश्ने विलादत की खुशी में रोशनी, लोग घर बदर सारे मोहल्ले को सजाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। एक और कलाम इंशाअल्लाह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान का प्यारा कलाम है इंशाअल्लाह। सारे स्लाइडर मिलके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मरहबा 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 मदीना मदीना सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आमदी मुस्तफा आमदी मुस्तफा मरहबा 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 आमदी मुस्तफा आमदी मुस्तफा मरहबा 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 सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। सल्ले अला सल्ले अला, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मरहबा 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 आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा मरहबा 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 मरहबा। बुझ गई जिसके आगे सभी मसले, बुझ गई जिसके आगे सभी मसले, समाओ लेकर आया हमारा नबी, समाओ लेकर आया हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आए सल्ले अला सल्ले अला, जिसका तलवों का धोवन है आए है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मरहबा
मुंह चाहिए, लिखा किनका है? आला हज़रत का। आइए मिलकर पढ़ते हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। सल्ले अला, सल्ले अला, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मरहबा 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 अहमदे मुस्तफा, अहमदे मुस्तफा, मरहबा 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 मरहबा। सबसे औला व आला हमारा नबी है कि नहीं? ये जैसा तैसा दिखने वाला कुछ भी बोल देता है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले का मुंह काला है ना, कुछ भी बोल देता है। हमें क्या है, हमें अकीदा पक्का रखना है इंशाअल्लाह, और आला हज़रत की बात पर अमल करना है इंशाअल्लाह। आला हज़रत ने बोल दिया ना, अब आंखें बंद है हमारी। आला ने जो बोल दिया, आंखें बंद। कोई बोले ना ये बता रहे, ये बता रहे, ये झंडे, ये लड़ियां, ये घूमना, ये सजाना, अरे बहुत वाले यार क्या कर रहे हो घर में गरीबों की? अभी शादी याद आएगी, अभी सबको याद आएगी शादी। आ जाओ वेस्ट टिकट पे कि यार ये झंडी लगाना, लाइटें लगाना, रोड जाम करना, लाइट घरों पे खर्चा करना, मिलाद में ना खर्चा करना, गरीबों की लड़की की शादी कर दो, आएगा बहुत सवाल। हमें किसी से कोई बात नहीं करना इंशाअल्लाह, हमें करना सरकार का मिलाद इंशाअल्लाह मनाएंगे। हसरत डालेंगे हम पैदाइश मौलाद में, है ना, हसरत डालेंगे हम पैदाइश मौलाद में, मिशन की सारे गिले गिले गिराते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, मिलाएंगे इंशाअल्लाह, फुल धूमधाम से मनाएंगे ना इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलाद आया, 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 मिलाद आया। निसार तेरी, निसार तेरी चहल पहल में हजारों ईदें नबीन अव्वल। निसार तेरी चहल पहल में हजारों ईदें नबीन अव्वल। सिवाय गिरीश के इस जहां में सभी को खुशियां मना रहे हैं, मना रहे हैं। मिलाद आया, आया, मिलाद आया, मिलाद आया, मिलाद आया। बिल्कुल है ना, सरकार की आमद, सच्चे की आमद, छोरे की आमद, मिलाद आया, मिलाद आया, मिलाद आया, मिलाद आया। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा, मरहबा, की आमद, मरहबा, सच्चे की आमद, मरहबा, सोरे की आमद, मरहबा, सच्चे की आमद, मरहबा, अब्बा की बिलादत, मरहबा, अब्बा की बिलादत, मरहबा, सरवर की आमद, मरहबा, अहमद की आमद, मरहबा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदब इंशाअल्लाह नियत उसके अमल से बेहतर है। तो कई अच्छी नियतें यहाँ की जा सकती हैं कि अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, सवाब के लिए इंशाअल्लाह बयान सुनेंगे। जो कुछ सुनेंगे इंशाअल्लाह
उस पर अमल की कोशिश करें इंशाअल्लाह। और जो सही याद रहा उसे दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश करें। तो सलाम पढ़ने के बेशुमार फजाइल और बरकतें हैं। बाद सहाबा इकराम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है, उस दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से ऐसी खुशबू महकती है कि फरिश्ते उस खुशबू को आसमान में महसूस करते हैं और उस खुशबू को सूंघकर ये अंदाजा कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ज़मीन पर, किसी खित्ताए ज़मीन पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा गया। कैसी खुशबू है कि दुरूद हम ज़मीन पर पढ़ रहे हैं और फरिश्ते उस खुशबू को आसमान में महसूस कर रहे हैं। आज जब हम इत्र खरीदते हैं, खुशबू खरीदते हैं तो ख्वाहिश क्या होती है, बल्कि खरीदते वक्त बोलते भी हैं कि ऐसी खुशबू दो जो दूर तक जाए। लेकिन दुरूद की कैसी खुशबू है कि फरिश्ते उस खुशबू को आसमान में महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये खुशबू महके क्यों नहीं? क्योंकि जिन पर दुरूद पढ़ा जा रहा है वो खुद खुशबू वाले हैं। यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू का आलम ये था कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के दरमियान मौजूद ना होते, कहीं और तशरीफ फरमा होते, तो सहाबा गले के कोने पे खड़े हो जाते और खुशबू सूंघ कर ये अंदाजा कर लेते कि हमारे आका इस रास्ते से गुजरे। जब तो शायद लिखते हैं ना, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है बसी की, बोलो इस वक्त भी गलियों में खुशबू है बसी। बल्कि आपको एक इश्क वाली बात बता, उलमा फरमाते हैं आज भी किसी की इश्क वाली ना हो तो मदीने में वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू सूंघी जा सकती है। तो आइए मोहब्बत के साथ झूम कर एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब। माशाअल्लाह मुबारक महीना चल रहा है और आज की जो महफिल रखी गई है वो जश्न ईद मिलादुन नबी के मुनासिबत से माशाअल्लाह रखी गई है कि 12वीं शरीफ का मुबारक महीना शुरू हो गया। अल्लाह पाक हमें इस महीने की बरकतों से माला माल फरमाए। और ये इस तरह की जो महफिल है, ये मतलब जो जश्न मिलादुन नबी की महफिल है या मीलाद शरीफ की महफिल है, ये जिन पर सरकार का करम होता है वही आते हैं। शायद लिखते हैं ना, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बोलो खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। आका की सनाखानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है, नदी बुजुर्गों ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो भी बुजुर्ग ने कलम उठाया है, लिखते लिखते ऐसा लगता है जैसे थक गए हैं। यानी कमा हम कहूँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को बयान कर ही नहीं सकता है। आला हजरत ने भी तारीफ बयान करना शुरू की, लिखते हैं सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का कुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या करूँ तुझे। आखिर में फिर लिखते हैं लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल का आका कहूँ तुझे।
तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है और क्या मकाम और मर्तबा है। यानी 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम कमोबेश तशरीफ लाए हैं। हर एक को अल्लाह पाक ने कोई ना कोई मौजज़ा अता किया। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था कि आपका जो असा मुबारक था, ठीक है, उसके जरिए से बहुत सारे मौजज़े आप दिखाते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि आप मुर्दा यानी जो मर गए थे, ठीक है, उनको जिंदा कर दिया करते थे, ठोकर मारते थे और जिंदा कर देते। कोड़ वालों पर दम करते, उनका कोड़ दूर हो जाता। तो हर नबी अलैहिस्सलाम को कोई ना कोई मौजज़ा अल्लाह पाक ने अता किया है। और वह फरमाते हैं कि जितने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए हैं, जितने उन सबको मौजज़ात अता किए गए हैं, उन सब के बराबर बल्कि उससे भी ज्यादा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ात अता किए गए। अच्छा, फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है। यानी यूं तो बहुत सारे मौजज़ात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाए हैं। जैसे आपने एक सहाबी हाजिर हुए, उनकी आंख निकल गई थी, ठीक है, जंग में लड़ रहे थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब लगाया, लुआब देहन लगाया और उस आंख को वहीं रख दिया। तो कहते हैं कि जो पहले वाली आंख थी उससे ज्यादा मुझे दिखाई देने लगा। एक सहाबी रात का वक्त हो गया था, तो उन्होंने कहा कि आका मेरे पास तो मुझे घर जाना है, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है। पहले इस तरह की टॉर्च वगैरह तो होती नहीं थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकड़ी छोटी सी उठाकर उसको दिया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रोशन कर दिया है। यूं चांद के तो टुकड़े फरमा दिए। और वो फरमाते हैं ये जो भी मौजज़ात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाए हैं ना, ये आपके लिए एक नॉर्मल सी बात थी। मिसाल के तौर पर हमारे नजदीक कोई काम बहुत बड़ा हो, हम सुने कि वो काम किसी फुड़ा बंदे ने कर दिया है, तो हम क्या कहते हैं, भाई वो काम उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसकी पावर इतनी है, उसकी बात इतनी है कि हमारे नजदीक वो बड़ा था लेकिन उसके नजदीक वो नॉर्मल सा काम है। और वो फरमाते हैं प्यारे आका का जो मकाम और मर्तबा है ना, जो स्टेटस है, फरमाते हैं उसके मुताबिक दो ही मौजज़ात हैं। पहला मौजज़ा फरमाते मेराज का मौजज़ा, यानी अल्लाह पाक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माथे की आंखों से अपना दीदार कराया। फरमाते कि ये मौजज़ा है। और दूसरा कुरान करीम का मौजज़ा, यानी कल्बे मुस्तफा पर कुरान पाक का नाजिल होना। फरमाते ये आपका जो अल्लाह पाक की बारगाह में मकाम और मर्तबा है, उसके मुताबिक दो ही मौजज़ात हैं। अच्छा, एक और बात कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजज़ात अता किए गए हैं, अगर हम तकाबुल करें ना, कंपैरिजन करें, तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों पता लगता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है। आइए आप सुनते जाइए, इंशाअल्लाह आपका दिल इंशाअल्लाह अंदर ही अंदर झूमता जाएगा। है तो क्या है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह इमाम साहब की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, और माए अहले सुन्नत, इमाम साहब नीचे बैठे जी, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि और नबी अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ात अता किए गए और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अता किए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, कितने पाए के नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और वो आग जिसके बारे में फरमाया गया कि ऐसी आग थी कि उसके आसपास से परिंदे गुजर नहीं सकते थे, जो गुजरता था वो जल जाता था, ऐसी आग। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला। अच्छा, और वो फरमाते हैं कि आग जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गुलजार हुई थी,
तो फरमाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यकीन, तवक्कुल, भरोसा ऐसा था अल्लाह पर, और आप अलैहिस्सलाम के लिए आग गुलजार हो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, लेकिन वो आग पर ठंडी हो गई। कैसा मकाम और मर्तबा है। अब आइए बात करते हैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी कहते हैं कि एक बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ लाए, हमने उनकी दावत की। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी रुमाल से, किसी कपड़े से अपने हाथ मुबारक साफ किए और दावत हुई, आप तशरीफ ले गए। कुछ दिन के बाद सहाबा इकराम की आपने दावत की। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वही रुमाल, वही कपड़ा हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा इकराम के सामने तंदूर में डाल दिया। आज जब हम कपड़े को साफ करते हैं तो हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन होती है ना, कपड़े को साफ करने के लिए। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वॉशिंग मशीन निराली। कहते हैं कि आपने उस कपड़े को आग में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उस कपड़े को आग से निकाला तो उसका जो मैल था वो साफ हो गया। सहाबा इकराम कहते हैं अनस, ये तो बताओ कपड़ा साफ करने का ये कौन सा तरीका है। कहते हैं कि असल में हुआ क्या है, एक बार हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ लाए थे, उनकी खाने की हमने दावत की थी। उन्होंने इस कपड़े से हाथ साफ किए थे। जब भी हमें इस कपड़े को धोने की जरूरत पड़ती है मैं आग में डाल देता हूँ, ये जब निकालता हूँ कपड़ा साफ हो जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी हो गई। कहते हैं कि जिस कपड़े से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ को टच किया है उसको दुनिया भी आग नहीं जलाती। ये मकाम मर्तबा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, इसी तरह एक और तकाबुल सुनिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कितना बड़ा नाम है? और मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था कि आपका जो असा मुबारक था, आप उसको पत्थर पर मारते, ठीक है, पत्थर से पानी के चश्मे जारी हो जाते। बहुत मतलब अजीम मौजज़ा। लेकिन जिन्होंने साइंस पढ़ी है, ठीक है, तो नॉर्मली जमीन से पानी निकलता, भाई हम बोरिंग करते पानी आ जाता है। यकीनन मौजज़ा बहुत बड़ा है कि बगैर बोरिंग के पानी निकाल देना। लेकिन प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है? हुदैबिया का मौका है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम है, पानी नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि जिनके पास थोड़ा भी पानी है ना, किसी एक बर्तन में जमा कर लो। सब मिलाया गया तो समझो कि एक प्याला पानी मिसाल के तौर पर सबके पास मौजूद था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उस पानी में डाल दिया। सहाबा इकराम कहते हैं कि पानी के चश्मे जारी हो गए। कहते हैं कि सारे सहाबा इकराम ने पानी पिया, पानी भर भी लिया, अपने जानवरों को भी पानी पिला दिया। कहते हैं कि पानी सबके लिए हो गया। फिर पूछा गया कि सहाबा इकराम की तादाद कितनी थी? कहा हम लोग 1500 थे। खुदा की कसम, अगर 1 लाख सहाबा इकराम भी होते तो वो पानी सबके लिए काफी हो जाता। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, शान है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, है? जब तो आला हज़रत फरमाते हैं ना, सबसे आला वाला, सबसे आला वाला हमारा नबी। और सुनिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कैसे खूबसूरत कि वो मशहूर वाक़या आपने सुना ही होगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब एक रास्ते से गुजरना था आपको, ठीक है, तो कुछ वहाँ औरतें खड़ी हुई थी जिनको सेब या नींबू का जिक्र है, ठीक है, कि वो दे दिया गया और चाकू दे दिया गया, कहा कि तुम ये काटना। तो उन्होंने अपनी उंगलियां काटी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अगर वो औरतें जो मिस्र में थी जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा था, कहा अगर मेरे आका को देख लेती तो अपने हाथ काट लेती।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न कैसा है कि मौलाना हसन साहब फरमाते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है? और उसमें हमने एक बात ये सुनी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौजिज़ात हैं उनमें से एक क्या है? कुरान पाक का नाज़िल होना। ठीक है, चलो बहुत सारे मौजिज़ात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाए हैं, लेकिन उस वक्त हम मौजूद नहीं थे। लेकिन उलमा फरमाते हैं एक मौजिज़ा ऐसा है जो आज भी हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह मैं दुरूद पाक पढ़ूंगा आप भी मेरे साथ पढ़ें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह वाला वसहाबिका या सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल अल्लाह पाक का करम, उसका एहसान कि हम अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने और सुनने के लिए जमा हुए। अल्लाह पाक हम सबका जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बड़ी मुबारक महफिल है। जितनी जो महफिल जितनी मुबारक होती है उसके आदाब भी उतने ही अहम होते हैं। तो निहायती तवज्जो के साथ ये बयान में शामिल हो जाइए। परचम झंडे जो हैं आप ये रख सकते हैं, और जो बच्चे हमारे साथ बैठे हैं वो भी खामोश रहकर तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आज के बयान में कई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। मोबाइल फ़ोन है तो साइलेंट कर लीजिए ताकि हमारी बयान में तवज्जो अच्छी अच्छी नियतें भी करें। क्या आपने पढ़ ली? वो कहे कि नहीं यार पढ़ नहीं पाया था, टाइम नहीं मिला, तो आपको कैसा लगेगा? हमें कैसा लगेगा? यार इतनी मोहब्बत के साथ मैसेज किया था, इतनी मोहब्बत के साथ मेल की थी, तुमने पढ़ी नहीं। अल्लाह पाक ने अगर क़यामत के दिन सवाल कर लिया गया हमसे कि मैंने जो कुरान पाक नाज़िल किया था क्या तुमने पढ़ लिया, सीखने की कोशिश की? मैं और आप क्या जवाब देंगे कि या अल्लाह टाइम नहीं था, मैं कारोबारी, मैं जॉब करने वाला, मैं नौकरी करने वाला, मैं कुरान पढ़ नहीं सका, सीख नहीं सका। तो क्या ये जवाब बन पड़ेगा? तो आज ऐसी कोई नियत कर लें कि इंशाअल्लाह कुरान पाक सीखने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी अब आप बोलो यार बहुत भारी है, हमारी उम्र 20 साल 30 साल 40 साल हो गई। मैं आपको एक मिसाल से और समझाता हूँ। आप जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं, अगर आपको बोला जाए कि अगर आप 3 महीने का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, ये अगर कर लो तो 5,000 आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। आपकी अभी जो भी सैलरी है, जो भी आपकी तनख्वाह है, जो भी पैसे आपको मिलते हैं, आपको कहा जाए 6 महीने का कोर्स कर लो, 30 मिनट की क्लास है, आपकी जो सैलरी है वो 5,000 बढ़ा देंगे। बंदा बोलेगा भाई जल्दी बताओ कौन सा कोर्स है, टाइम कैसे निकालना है, वो तो अपने सब कर लेंगे, ये बताओ कोर्स कौन सा है, क्लास कब होनी है। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामिक भाइयों, जब हम
दुनिया में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है पैसों का, इसके लिए बंदा ट्यूशन लगाने के लिए तैयार है, जाकर पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन कहा जाए भाई 30 मिनट निकाल लो, दावत इस्लामी के माहौल में मदरसतुल मदीना बालिगान चल रहे हैं, वहां जाकर कुरान सीख लो, तो हम कहते हैं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। और आसान कर दिया, ऑनलाइन सीख लीजिए, घर बैठे सीख सकते हैं। तो क्या फरमाते हैं, नियत करते हैं सबकी आवाज तो जहां भी आप हैं, ठीक है, माशाअल्लाह हमारी इस मस्जिद के इमाम साहब है, मौज़िन साहब है, ठीक है, जो आप यहाँ करीब में रहते हैं उनके पास आ जाएं। अगर आप दूसरी मस्जिद से तशरीफ लाएं, यानी आपका ज़रिया हल्का दूसरा है, तो वहाँ के जो इमाम साहब है उनसे बात कर लें, दावत इस्लामी के जिम्मेदारान से बात कर लें, लेकिन कोशिश करें और ये नियत होनी चाहिए और इसके लिए कोशिश भी हो कि इंशाअल्लाह कब्र में जाऊंगा उससे पहले कुरान पाक पढ़ना सीखना है। देखो मैं बहुत सारी बातें मौजूदात और भी बयान किए जा सकते हैं, लेकिन असल ये है कि हम जश्न ईद मिलादुन नबी हर साल आती है और इंशाअल्लाह ये जश्न हर साल बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा और जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह आका का जश्न मनाते जाएंगे। लेकिन असल ये है कि जश्न ईद मिलादुन नबी तो आया है, अपनी बरकतें लुटा रहा है ये महीना, लेकिन मेरे और आपके अंदर तब्दीली क्या है? तो ये नहीं हो सकता कि सन 2024 का जश्न ईद मिलादुन नबी जो आया है ये इंशाअल्लाह मैं इस साल में कुरान पढ़ना सीख जाऊंगा। तो पहली नियत तो यही करनी। दूसरी ये कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद आया है तो अब कुछ गिफ्ट भी देना है ना, तोहफा भी देना है। भाई जब किसी का बर्थडे आता है तो हम गिफ्ट देते ही नहीं है नहीं, तो अब क्या गिफ्ट देंगे? तो एक तो मैंने जो अर्ज किया है कुरान पाक सीखने का, दूसरा गिफ्ट इंशाअल्लाह नमाज की नियत करके नमाज पाबंदी के साथ पढ़नी है और ये गिफ्ट प्यारे आका की बारगाह में पेश करना। नियत बनती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है और जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वाला अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक की 11वीं मनाने वाला नमाज से दूर, ये नहीं। इस बार का जश्न ईद मिलादुन नबी हमारी जिंदगी में चेंज लाए, हम तब्दीली लाए अपने अंदर। आप में से हो सकता है कई भाइयों की जिंदगी में जब से होश संभाला है 20 बार 30 बार 40 बार जश्न ईद मिलादुन नबी का महीना आया है, 12 तारीख इस महीने की हमने पाई है, लेकिन नमाज हम में से कितने लोग पढ़ रहे हैं? अच्छा नमाज की बात करें ना तो कई लोग कहते हैं जनाब हम तो पूरे दिन की एक साथ पढ़ लेते हैं नमाज। भाई कैसे? इशा में पढ़ लेते हैं। भाई खाना कब खाते हो, नाश्ता कब करते हो? कहेंगे वो तो टाइम पर करते हैं, दोपहर का खाना भी टाइम पर खाते हैं, लेकिन नमाज एक साथ पढ़ लेते हैं। तो ये नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। हाँ, जिस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मना रहे हैं ना उन पर तहज्जुद की नमाज भी फर्ज थी और जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वाला 5 वक्त की नमाज से जी चुराए तो नहीं। इंशाअल्लाह आका के सच्चे गुलाम हैं, सच्चे आशिक हैं और उन्होंने फरमाया है कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। इंशाअल्लाह हम आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ठंडक को पहुंचाएंगे। तो नमाज की पाबंदी करनी है, ठीक है। दूसरा एक और बात जो नियत करनी है हमें इस महीने में, वो क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाढ़ी को माफी दो, मूंछों को पस्त करो, छोटी करो और फरमाया यहूदियों जैसी सूरत न बनाओ। तो अल्लाह तौफीक दे। बड़ा मुबारक महीना चल रहा है, चांद की आज 2 तारीख हो गई ना, 3 लग गई है, ठीक है। तो कई लोग हैं जो माशाअल्लाह इस महीने में 12 तारीख तक दाढ़ी नहीं बनवाते, अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह तौफीक दे तो फिर 12 तारीख तक भी मत बनवाओ और उसके बाद भी फिर इसको रखो। और दाढ़ी कोई बहुत ज्यादा वजन नहीं है इसमें। हाँ, यकीन नहीं आता तो रख कर देखो जी। हाँ, बहुत ज्यादा वजन नहीं है, बहुत हल्की फुल्की है तो रखें। अच्छा फिर दाढ़ी का फायदा क्या कि जब
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर आप अमल करेंगे ना, बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे, यकीन जानो। जी हाँ, दाढ़ी जब होती है ना तो बंदा फिर इधर उधर जाता ही नहीं है, ठीक है, नहीं कहता भाई प्यारे आका की सुन्नत सजा दी है, अब इंशाल्लाह नजरें झुकी रहेंगी। तो हाँ, अच्छा फिर सवाब कितना है? मुफ्ती आजम या सदरुल अज़ाफ फाजिल का शायद फरमान है कि आप फरमाते हैं कि इस दौर में, ये जो दौर चल रहा है ना, लोग सुन्नतों से दूर हैं, ठीक है, गुनाहों की तरफ लगे हुए हैं, फरमाते हैं कोई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल करेगा, उससे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अच्छा, रीजन क्या है? 100 शहीदों का सवाब क्यों? फरमाते हैं देखो, जब कोई सुन्नत पर अमल करता है ना तो लोग उसको सताते हैं, जख्म लगते हैं ना, ये तलवार का जख्म नहीं है, ये बाहर है, रिश्तेदारों की तरफ से, घर वालों की तरफ से। तो फरमाते बंदा इस जख्म को सहता है, इसकी वजह से इसका सवाब बढ़ा दिया गया। अच्छा फिर, अच्छा वसवसे क्या है? आप में से जिनकी शादी नहीं हुई है उनको क्या होता है, यार दाढ़ी रख लेंगे तो शादी नहीं होगी। गारंटी की बात है, आप दाढ़ी रखो, दाढ़ी की नियत करो, गलत रिश्ते छट जाएंगे। भाई दाढ़ी वाले को कौन लड़की देगा? जिसका कुछ ना कुछ जहन दीनी होगा। तो समझ लो, दाढ़ी की आपने नियत करी, गलत रिश्ता आपके पाले ही नहीं पालना है। हाँ, वो ही अपनी लड़की को देगा जिसका कुछ ना कुछ जहन दीन के हवाले से होगा। तो क्या नियत करते हैं? इंशाअल्लाह प्यारे आका का मीलाद मना रहे हैं, उनकी प्यारी सुन्नत दाढ़ी को सजाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हैं? तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रोज़ तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रोज़ प्यारे आका का मीलाद मना रहे हैं इंशाअल्लाह। इस मीलाद की खुशी में प्यारे आका की मुबारक सुन्नत को सजाएंगे इंशाअल्लाह। कोई है जो उठकर नियत का इजहार करे? उठकर जो उठकर नियत का इजहार करे। माशाअल्लाह, क्या बात है। जिनकी दाढ़ी और ले लिए खड़े रहे, खड़े रहे इंशाअल्लाह, खड़े रहे जो नियत कर रहे हैं जी, दाढ़ी नहीं कटेगी इंशाअल्लाह। और अरे वाह माशाअल्लाह, 4-5 लोग हो गए। और कोई जो इनका साथ दे, खड़े रहे जो नियत जिनकी है ना माशाअल्लाह जी। और प्यारे आका की इंशाअल्लाह दाढ़ी को सजाएंगे माशाअल्लाह जी। और पीछे वाले भी माशाअल्लाह, आपकी तो है माशाअल्लाह, क्या बात है। भाई भी खड़े हो गए, इधर से भी हिम्मत करें माशाअल्लाह। एक और भाई हमारे, क्या बात है। 12 तो हो जाए 12वीं शरीफ की निस्बत से, कितने होगा सद्दाम भाई जी। और बच्चे भी नियत कर सकते हैं माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। हमारे भाई भी खड़े हो गए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और जी, जल्दी जल्दी माशाअल्लाह। अल्लाह पाक, हम दुआ भी करते हैं अल्लाह पाक इन सबको इस्तिकामत दे, है नहीं, और इनके सदके में हमें भी इस्तिकामत दे, है नहीं। तो जी तशरीफ रखें माशाअल्लाह। जिन्होंने नियत की है वो हारिश भाई, बाद में मुलाकात है। जिन्होंने नियत की है गाड़ी शरीफ की, वो सलातो सलाम दुआ के बाद इंशाअल्लाह यहाँ तशरीफ रखें, उनको कुछ तोहफा भी देंगे इंशाअल्लाह, है ना जी।
तो इंशाअल्लाह आका की सुन्नतों पर अमल करेंगे। और कई लोग होंगे जिनकी नीयत तो होगी, हो सकता है इजहार नहीं किया हो अभी, लेकिन जब आज रात बिस्तर पर जाए ना तो सोचे जरूर हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम कब्र में जाएंगे और प्यारे आका का दीदार होगा, और अगर हमने जाने की नियत करी है तो आका से अर्ज करेंगे, आका सन 2024 का जो जश्न ईद मिलादुन नबी हमने मनाया था, आपकी मोहब्बत में मैंने दाढ़ी की नियत की थी। यकीन जानो कैसा करम होगा है। हो सकता है कि आज की रात ही जिन्होंने नियत की है नहीं, उन पर करम हो जाए और प्यारे आका की ज़ियारत हो जाए। तो कितनी चीजें हो गई। मैंने एक तो कुरान पाक सीखने के हवाले से आपको अर्ज किया, दूसरा नमाज की पाबंदी करनी है, और तीसरा प्यारे आका की सुन्नतों पर अमल करना। इमाम शरीफ की सुन्नत है, ठीक है। कई लोग हैं माशाल्लाह 12वीं शरीफ के महीने में और बिलखुसूस 12 तारीख को इमाम शरीफ सजाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है कि 12वीं शरीफ में भी सजाएं और फिर बाद में भी इसे सजाए रखें। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि कबीर। आइए 12वीं शरीफ जो हम मनाते हैं उसकी उन मनाने वालों को क्या बरकतें मिलती हैं वो इंशाअल्लाह सुनते हैं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात खुशी मनाने वालों को इस नेकी का बदला ये मिलेगा कि अल्लाह करीम इन्हें अपने फजलो करम से जन्नतुल नईम में दाखिल फरमाएगा। मुसलमान हमेशा से महफिल मीलाद का एहतमाम करते, विलादत की खुशी में दावत देते, खाने पकाते और खूब सदका और खैरात करते आए हैं, खूब खुशी का इजहार करते और दिल खोल कर खर्च करते रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जिक्र का एहतमाम करते हैं, और इन तमाम नेक और अच्छे अमाल की बरकत से इन लोगों पर अल्लाह करीम की रहमतें उतरती हैं। एक बुजुर्ग ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और पूछा कि जो मुसलमान हर साल आपका जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, ये तारीख मनाते हैं, क्या आपको पसंद आता है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न इंशाअल्लाह धूमधाम से मनाएंगे। अभी अहले सुन्नत ने माशाअल्लाह एक ज़हन दिया है कि जब 12वीं शरीफ आए तो नए नए कपड़े सिलवा लें, ठीक है, टोपी जूते मोजे जो भी पहनते हैं वो सब नया नया कर लें, और 12 तारीख की जो रात की महफिल जहाँ जहाँ भी होती है वहाँ शिरकत करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि या अल्लाह मैंने अपने जाहिर को अच्छा कर लिया है, तू मेरे बातिन को अच्छा कर। अपने घर में झंडा लगाएं, है नहीं, इसी तरह से लाइटिंग करें, तो क्या होगा, दिन में झंडा बताएगा या आशिक मिलाद कर रहे हैं, और रात में जो लाइट आपने लगाई है वो बताएगी आशिक मिलाद कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह प्यारे आका का जश्न इंशाअल्लाह धूमधाम से मनाना है, और जो हमने नियत की है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गिफ्ट देना है, तोहफा देना है, तो वो भी इंशाअल्लाह उसकी भी तैयारी करनी है। अच्छा, फिर गिफ्ट देंगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये प्यारे आका की बारगाह में कबूल हो जाए। देखो, जब कोई गरीब किसी अगर बादशाह को गिफ्ट दे, कोई गरीब बंदा हो और बादशाह को गिफ्ट दे तो कैसा देगा, छोटा सा ही होगा, है नहीं, लेकिन अगर बादशाह उसके बदले में दे उसे, मतलब अगर बादशाह छोटा भी दे तो बहुत बड़ा है इसके लिए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उम्मती है, ठीक है, प्यारे आका की बारगाह में गिफ्ट देंगे, तोहफा देंगे, और वो हमारा तोहफा देना कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह हमारे तो बारे ही न्यारे हो जाएंगे। शायद लिखते ना, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। और आला हज़रत फरमाते, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। तो नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह प्यारे आका का जश्न धूमधाम से मनाएंगे। और कब तक जश्न मनाएंगे?
तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, घर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह। एक और नियत कर लीजिए, अमीर अहले सुन्नत ने ज़हन दिया है कि इंशाल्लाह 12 तारीख तक रोजाना 1200 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। अब कौन सा दुरूद पाक पढ़ना है? जो भी आपको याद है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ठीक है, ये भी दुरूद पाक है। तो जो भी दुरूद पाक आपको याद है, ठीक है, वो कोशिश करें कि वो दुरूद पाक पढ़ें। 12 दिन तक दुरूद पाक 1200 बार रोजाना, अल्लाह तौफीक दे तो पूरे महीने पढ़ लें। तो इससे क्या होगा कि जितना दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उतनी बरकतें ज्यादा मिलेंगी। यानी और वो फरमाते हैं कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र बार बार करता है नहीं? तो हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो इंशाअल्लाह उनका जिक्र भी बार बार करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आखिर में मैं कुछ मशवरे आपको देना चाहूँगा। माशाअल्लाह दावत इस्लामी का माहौल आप देख रहे हैं। हर जुमा को इशा की नमाज के बाद उत्तम नगर फैजान गौसे आजम मस्जिद में दावत इस्लामी का सुन्नत वाला इज्तिमा होता है, वहाँ शिरकत करें। वहीं से मदनी काफिले सफर करते हैं, मदनी काफिले में सफर करें। इस तरह की जब महफिल में शिरकत करते हैं तो कई बार ज़हन बनता है कि नहीं यार, इल्म दीन सीखना चाहिए, कुरान पाक पढ़ना सीखना है, सुन्नतों पर अमल करना है। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे हम दूर होते हैं तो वो फिर ज़हन चेंज हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि बराबर ज़हन बना रहे, तो उसके लिए क्या है कि आप दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो जाए। हमारे जो यहाँ मुबल्लिगीन हैं, जिम्मेदारान हैं, उनसे आप कांटेक्ट में आ जाएं, राब्ते में आ जाएं। और अल्लाह तौफीक दे तो इसी महीने में, 12वीं का महीना चल रहा है, इसी महीने में 3 दिन का मिनिमम काफिला होता है, मदनी काफिला कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह जो कुरान पाक पढ़ने के हवाले से आपने नियत की है, तो इस इज्तिमा के बाद आप जिम्मेदारान से रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह कोई ना कोई आपका एडमिशन की सूरत बना देंगे। तो कुछ ना कुछ इस तरह के दीनी कामों में लगिए, यानी रोजाना आप कहीं टाइम दे रहे हैं, हफ्ते में दे रहे हैं, महीने में दे रहे हैं, इस तरह से टाइम देते रहिए। तो बार बार जब टाइम देंगे, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह कई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ें। सुभान अल्लाह। हमारे आलिम साहब का भी बयान होगा इंशाल्लाह, और बयान के बाद जिक्र होगा, फिर दुआ होगी इंशाल्लाह, सलातो सलाम। उसके बाद खाने का भी एहतमाम है, तमाम इस्लाम भाई खाना खा के जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए तमामी हज़रात मिलकर नबी की बारगाह में झुम झुम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन
बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी अभी आप हजरात के सामने हजरत क़य्यूम साहब ने बड़ी अच्छी बातें आप लोगों के सामने रखी हैं। अगर इन बातों के ऊपर हमने आपने अमल करना शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में एक इनकलाब पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जिंदगी गुजारने का मजा और लुत्फ ही आ जाएगा। क्यों हामिद लखनवी लिखते हैं, हकीकत में वो लुत्फ जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ जिंदगी पाया नहीं करते जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। अभी आप लोगों ने नियत की इरादा क्या, कुरान पढ़ेंगे, नमाजों को वक्तों पे अदा करेंगे, गाड़ी रखेंगे, ये सब चीज क्या है? ये सब मुस्तफा की यादें हैं। और जिसके दिल में मुस्तफा की यादें बस जाए उस दिल की मिसाल पूरी दुनिया में मिल ही नहीं सकती। हकीकत में वो लुत्फ जिंदगी पाया नहीं करते जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। अरे वो नादा कुर्बा हो जा उनके रोजे पर, अरे वो नादा कुर्बा हो जा उनके मिलाद पर, क्यों बार बार ये लम्हे जिंदगी में आया नहीं करते, बार बार ये लम्हे जिंदगी में आया नहीं करते। और हम और आप तो नबी के अपने हैं। मेरा नबी वो है जिसकी बारगाह से गए भी कभी खाली नहीं लौटे। ये दरबारे मोहम्मद है, ये मिलाद शरीफ की महफिल है। यहाँ मेरे नबी रूहानी तौर पर तशरीफ फरमा है। यहाँ जो नियत करेंगे इंशाअल्लाह जरूर पूरी होगी। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। अरे यहाँ से तो हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करता। मैंने खुतबाए मसनूना के बाद जो आयत करीमा तिलावत की, मुझे आप लोग लमसम 22.5 साल से समाप्त कर रहे हैं और सुनते सुनते पक भी गए होंगे। लेकिन नबी की बातें, नबी की सुन्नतें जितने सुनते रहेंगे, अमल करते रहेंगे, जिंदगी में इंकलाब बर्पा होता जाएगा। ये 12 रबीउल अव्वल अल्लाह ने जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, न जमीन आसमां चांद सूरज होरो गुलमा फरिश्ते इंसान, कुछ भी नहीं, कोई चीज वजूद में थी ही नहीं। तो अल्लाह ने चाहा, क्या चाहा? सिर्फ चारों तरफ अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ने चाहा, क्या चाहा? कि मेरी पहचान हो, मेरी पहचान हो, मुझे कोई जाने, मुझे कोई माने। तो कुछ है तो नहीं,
تو اللہ کو پہچانے کون, اللہ کو مانے کون؟ تو اللہ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے اپنے نور سے پیارے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا. اور ایک بات بتاؤں, آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آج ہم میلاد میں بیٹھے ہیں تو ہم احسان کر رہے ہیں نبی کے اوپر. نبی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, بلکہ نبی کا آپ کے اوپر احسان ہے کہ نبی نے آپ کو میلاد میں بلایا ہے. کیوں؟ اس نبی کا میلاد تو خود خدا پڑھ رہا ہے. اس نبی کا میلاد سب سے پہلے خدا نے پڑھا. اور ہماری محفل میں نمازی, غیر نمازی, داڑھی والے, بے داڑھی والے, الٹے سیدھے سب ہیں. مگر اللہ نے جب میلاد پڑھا تھا نا تو اس محفل میں صرف انبیاء کی جماعت موجود تھی. صرف انبیاء کی جماعت. اور ایک میلاد روزے محشر پڑھا جائے گا. میں نے جمعے میں آپ لوگوں کو سرسری طور پر سنایا تھا نا کہ 12 ربیع الاول عید میلاد النبی. عید کا مطلب خوشی, میلاد کے مطلب پیدائش, اور نبی کے مطلب نبی. نبی کے پیدائش کی خوشی بتایا تھا آپ لوگوں کو. گویا کہ برتھ ڈے, جنم دن ہر سال مناتے ہیں. آپ لوگ بھی اپنے بچوں کا مناتے ہیں. تو جنم دن منانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. جس کا منایا جائے اور جو منائے, دونوں کو بیک وقت ایک ہی زمانے میں ہونا ضروری ہے. ہم لوگ جو نبی کی برتھ ڈے, جنم دن, عید میلاد النبی منا رہے ہیں, تو نبی تو آج سے 1400 سال پہلے اور ہم لوگ بعد میں. اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کا ساتھ ہونا ضروری. تو یہ مثال دے کے سمجھایا تھا نا. ڈاکٹر واصف علی واصف سے کسی نے یہ سوال کیا تھا, کیا کہ ہم لوگ جو درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف پڑھنے کے لیے شرط کیا ہے؟ جب سائل نے سوال کیا تو ڈاکٹر واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ جو درود شریف پڑھتا ہے اور جس کے اوپر پڑھا جاتا ہے, دونوں کا زمانہ ایک ہونا ضروری ہے. دونوں کا وقت ایک ہونا ضروری ہے. تو پھر سائل نے کہا, کیا کہا, تو پھر تو ہم لوگوں کو درود شریف پڑھنا ہی نہیں چاہیے. کیوں کہ نبی 1400 سال پہلے اور ہم 1400 سال بعد. اور اس کا کہنا اگر دیکھیے تو ایک حساب سے صحیح بھی ہے, مگر ڈاکٹر واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ نبی 1400 سال پہلے اور تم 1400 سال بعد, تمہیں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. سائل نے کہا وجہ, دلیل. تو ڈاکٹر واصف علی فرماتے ہیں کہ اگر یہ تم نبی کے زمانے میں نہیں تھے لیکن نبی تمہارے زمانے میں موجود ہے. نبی موجود ہے کہ نہیں؟ نبی تھے, نبی ہے اور نبی انشاءاللہ رہیں گے. اور اسی کے اوپر ایک مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دیا تھا.
اور اگر دلیل چاہیے تو جب مکہ مکرمہ کے اوپر کعبہ ڈھانے کے لیے ابرہہ بادشاہ اپنے لشکر لے کر مکے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تو حضرت عبد المطلب کچھ لوگوں کو لے کر کعبہ کے صحن میں پہنچ جاتے ہیں اور کعبہ کے خلاف پکڑ کر حضرت عبد المطلب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے رب قدیر خلاق کی کائنات، اگر وہ نور جس نور کی بشارت حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں نے دی ہے، اگر وہ نور آمنہ کے پیٹ میں ہے، آمنہ کے پیٹ میں ہے، تو اسی نور کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے رب سب اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، تو اپنے گھر کی حفاظت کر لے۔ دنیا نے دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اور وہ ابرہہ بادشاہ جو کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا خود نیست و نابود ہو کر واپس جانا پڑتا ہے۔ اسی وہی نور 12 ربیع الاول کو دوشنبہ پیر کے دن ہمارے اور آپ کے بیچ میں تشریف لائے۔ یہ تو سب کو پتا ہے کہ ہمارے نبی کے والد کا نام حضرت عبداللہ، ماں کا نام حضرت آمنہ، دادا کا نام عبد المطلب، دادی کا نام فاطمہ، نانا کا نام وہب اور نانی کا نام برہ۔ یہ سب کو پتا ہے کہ ہمارے نبی 12 ربیع الاول دوشنبہ پیر کے دن پیدا ہوئے۔ آئیے آج میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں، یہ نور حضرت آمنہ کے شکم میں کب آئے؟ شاید کسی کو معلوم ہو۔ مورخین لکھتے ہیں یہ نور حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم میں پیٹ میں رجب کے مہینے میں آئے۔ سبحان اللہ، کس مہینے میں آئے؟ رجب کے مہینے میں آئے۔ مہینہ رجب کا دن کون سا تھا؟ مورخین لکھتے ہیں وہ نور رجب کے مہینے میں حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر آمنہ کے پیٹ میں جو آئے وہ مہینہ رجب کا تھا اور دن جمعے کا تھا۔ سبحان اللہ، مہینہ رجب کا اور دن جمعے کا۔ 2 مہینے گزرنے پائے تھے، وہ نور منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم میں جو آئے 2 مہینے گزرنے پائے تھے کہ حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ سے مشورہ کر کے ملک شام تجارت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ملک شام میں تجارت کرنے کے بعد جب واپس آنے لگے
تو ملک شام اور مکے کے درمیان بیچ میں ایک شہر پڑتا تھا جس شہر کا نام آج دنیا مدینے کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عبداللہ کے ننیال اس شہر میں حضرت عبداللہ تجارت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دل میں سوچا کہ میں واپس جا رہا ہوں تو راستے میں ننیال ہے، یہاں کچھ دن گزار لو، ٹھہر کے جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ اپنے ننیال میں آئے اور وہاں آنے کے بعد حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ طبیعت صحیح ہونے میں نہیں آئی اور کچھ دنوں میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے اب حضرت آمنہ، جب میرے نبی حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر یہ سوچتی تھی کہ یا اللہ، میرے بیٹے کے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ چکا ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ جب حضرت آمنہ اپنے دل میں یہ سوچ رہی تھی تو غیب سے صدا آتی ہے، آواز آتی ہے، آمنہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے جس بچے کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے نا، اس کو باپ کے سائے کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے کو تو ہم امام الانبیاء بنا کر بھیجے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں اور ابھی حضرت نے بھی بیان کیا کہ جتنے انبیاء آئے اللہ نے سبوں کو معجزے دیے، کسی کو کوئی معجزہ، کوئی معجزہ، مگر جب باری آتی ہے میرے نبی کی، جب باری آتی ہے پیارے مصطفیٰ کی، جب باری آتی ہے غمخاروں کے غمخار کی، جب باری آتی ہے دونوں عالم کے مالک و مختار کی، تو رب تبارک و تعالی میرے نبی کو صرف معجزہ ہی نہیں بلکہ میرے نبی کو اللہ تعالی سارا پا معجزہ بنا کر بھیجتا۔ حضرات محترم، اس نبی کا دامن جس نے بھی تھام لیا، اس نبی کے قول و فعل کے اوپر جس نے بھی عمل کر لیا، وہ زمین کے اوپر تھے تب بھی شاداب اور شادماں تھے، اور آج زمین کے اندر ہے تب بھی اس کی حکومت جاری و ساری ہے۔ حضرات محترم، آج ہم لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، آج ہم بہانہ کرتے ہیں داڑھی رکھیں گے تو روزی روٹی یعنی نوکری ہماری چھین جائے گی۔ قسم خدا کی، جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے پوری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ پہلے مصطفیٰ کا بن کے تو دیکھو، پھر کہنا دنیا کیسے تمہارے قدموں میں جھوکتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج حضرت نے ابھی اعلان کیا جس میں میرے خیال سے داڑھی کے لیے گنے چنے 4-5 آدمی ہاتھ کھڑے ہوئے، باقی لوگ سوچتے رہ گئے، سوچتے ہیں کہ داڑھی رکھ لیں گے تو نوکری کا کیا ہوگا۔ سنو، ایک بہت بڑا پڑھا لکھا لڑکا، بہت پڑھا لکھا، ہر سبجیکٹ میں اعلیٰ نمبر، وہ نوکری ڈھونڈتے ڈھونڈتے لندن پہنچ جاتا ہے اور
اور لندن پہنچ کر ایک بہت بڑی کمپنی میں جا کے انٹرویو دیتا. وہ لڑکا جہاں دنیاوی پڑھائی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کیا تھا وہی وہ زبردست عاشق رسول بھی تھا. نمازوں کو پابندی کے ساتھ اپنے وقتوں پہ ادا کرتا تھا. چہرہ کو داڑھی مبارکہ سے سجائے رکھا تھا. جب وہ لڑکا لندن کی کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے گیا, انٹرویو دے دیا تو کمپنی والے نے اسے اس انٹرویو میں پاس کر دیا. وہ پاس ہو گئے. کمپنی کے مینیجر کہنے لگے کہ آپ انٹرویو میں پاس ہو گئے, آپ کو ہم سلیکٹ کر لیں گے, اپنی کمپنی میں نوکری دے دیں گے, مگر ہماری ایک چھوٹی سی شرط ہے. ہماری ایک چھوٹی سی شرط ہے. کیا شرط؟ کہنے لگے شرط یہ ہے کہ آپ کے چہرے میں جو یہ داڑھی ہے نا, یہ آپ کو ختم کرنی پڑے گی. یہ داڑھی آپ صاف کروا دیں گے تو آپ کی نوکری پکی. لڑکا عاشق رسول تھا. کہنے لگے مجھے ایسی نوکری نہیں چاہیے جس سے میرے نبی کی سنت پامال ہو رہی ہے. ابھی آپ نے سنا نا, ایک سنت کو اگر زندہ کیا جائے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. لڑکے نے منع کر دیا کہ نوکری نہیں ملتی ہے, نہ ملے, داڑھی چہرے سے ہٹے گی نہیں. کمپنی کا مینیجر کہنے لگے آپ کی مرضی, لیکن پھر بھی ہم آپ کو 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں, آپ سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا. اب وہ لڑکا آیا, جب رات کو کھانا کھا کے بستر میں لیٹا تو شیطان اس کے اوپر دھیرے دھیرے حاوی ہونا شروع ہو گیا. وہ اپنے دل میں سوچنے لگا یار اتنی بڑی نوکری, اتنی بڑی کمپنی, ایسی نوکریاں بڑی مشکل سے ملتی ہیں. ایک کام کرو, کچھ ہی دن کی بات ہے, یہ داڑھی صاف کرا دوں اور نوکری حاصل کر لوں. زیادہ سے زیادہ 15-20 دن میں بھی داڑھی آ جائے گی, رکھ لیں گے. شیطان اس کے اوپر حاوی ہو گیا, جیسے ہم لوگوں کے اوپر حاوی ہے کہ اگر ہم داڑھی رکھیں گے تو نوکری نہیں ملے گی, یا نماز پڑھیں گے تو کام پورا نہیں ہوگا. شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ نوجوان چہرے سے داڑھی کو غائب کیا, داڑھی چھین دیا اور تیسرے دن اسی کمپنی میں پہنچ گیا. جب کمپنی میں پہنچا تو مینیجر اس لڑکے سے, اس نوجوان سے کہنے لگے ہاؤ آر یو, آپ ہے کون, کہاں سے آئے؟ وہ نوجوان کہنے لگا فلاں, آپ مجھے جانتے نہیں ہیں, میں 3 دن پہلے آپ کی کمپنی میں آ کے انٹرویو دے کے گیا, میں پاس ہو گیا. آپ نے ایک شرط رکھی تھی کہ داڑھی اگر ہم غائب کر دیں, داڑھی ہٹا دیں تو نوکری مل جائے گی. تو میں نے آپ کی شرط مان لی اور میں نے داڑھی ختم کر دی. جب انہوں نے شرط مان لی, داڑھی اڑا دی, تو نوکری ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ بینک کا مینیجر کہنے لگا افسوس افسوس, ہم آپ کو نوکری نہیں دے سکتے. لیکن کیوں؟ آپ کے کہنے کے مطابق میں نے داڑھی چہرے سے غائب کر دیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ نوکری نہیں مل سکتی ہے, وجہ؟ تو کمپنی کا مینیجر جواب دیتا ہے, دل کی تختی میں نوٹ کرنے والی بات ہے. کہنے لگا وہ نوجوان سن, تو پڑھا لکھا ہو سکتا ہے
ٹاپ سے ٹاپ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں تمہارے اوپر اعتبار اور وشواس نہیں ہے۔ بھلے کیوں؟ بھلے یوں کہ جو اپنے نبی کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو جائے؟ جو اپنے نبی کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو جائے گا؟ تو دیکھا آپ نے، نبی کی سنت کے اوپر داڑھی اگر وہ نہیں کٹاتا تو نوکری وہ کمپنی مینیجر کے باپ کو بھی دینا پڑتا، کیونکہ روزی کا مالک وہ کمپنی نہیں ہے، روزی کا مالک وہ مینیجر نہیں تھا، روزی کا مالک تو خدا ہے، اور خدا نے خزانے کی چابی مصطفیٰ کو دے رکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ جسے جسے چاہیں گے روزی بانٹتے جائیں گے۔ حضرات محترم، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 63 سالہ زندگی میں آج ہم اور آپ اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے سوچتے ہیں، اپنے رشتہ دار کے لیے سوچتے ہیں، خاندان کے لیے سوچتے ہیں، کنبے والوں کے لیے سوچتے ہیں، لیکن نبی نے نہ تو اپنے بال بچوں کے لیے سوچا، نہ رشتہ دار کے لیے سوچا، نہ خاندان کے لیے سوچا۔ اگر نبی نے سوچا تو اس گنہگار امتی کے لیے سوچا۔ نبی آئے تب بھی نبی کے زبان پر امتی امتی، اور نبی جانے لگے تب بھی نبی کے زبان پر امتی امتی۔ جب سارے نبیوں کے زبان پر اینی ٹائم امتی امتی، تو اس امتی کے زبان پر ہر گھڑی ہونا چاہیے نبی 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 نبی۔ جب نبی نے امتی کو کسی بھی حال میں کسی بھی موڑ میں بھولا نہیں تو یہ امتی نبی کو کیسے بول سکتی ہے؟ اگر یہ امتی نبی کو یاد کرنا شروع کر دیں تو اسی امتی کے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اسی امتی کے لیے سب کچھ ہے۔ کیوں؟ میں نے بتایا آپ لوگوں کو، اللہ نے سارے خزانوں کی چابی پیارے مصطفیٰ کو دے رکھا۔ قرآن کے اندر ایک لفظ ایک آیت ہے مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں، اور ایک جگہ ہے مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی چابیاں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کسی نے یہ سوال کیا کہ مفاتیح الغیب اور مقالید السماوات والارض، غیب کی چابیاں اور زمین آسمان کی چابیاں، ان سے مراد کون ہیں؟ دنیا نے پتہ لگانے کی بہت کوشش کی لیکن دنیا پتہ نہ لگا پائی، اور جب پتہ نہ لگا پائی دنیا تو ایک شخص میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت ہیں، آپ بتائیے مفاتیح الغیب مقالید السماوات والارض، غیب کی چابیاں، زمین آسمان کے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت ایسی اعلیٰ حضرت نہیں ہو گئے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کا ذہن، اعلیٰ حضرت کا دماغ، اعلیٰ حضرت کا علم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفاتیح الغیب مفاتیح الغیب، مفاتیح یہ جو لفظ ہے اس کا پہلا اکشر کیا ہے؟ اس کا پہلا اکشر کیا ہے؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ تو سائن نے کہا اس کا پہلا لفظ میم ہے۔ کیا ہے؟ میم۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مفاتیح کا آخری لفظ کیا ہے؟ سائل کہنے لگے اس کا آخری لفظ ہا ہے۔ کیا ہے؟
हा। फिर आला हजरत फरमाते हैं मकालिद में पहला लफ्ज क्या है? तो साहिल ने कहा मकालिद में पहला लफ्ज मीम। फिर आला हजरत फरमाते हैं मकालिद में आखिरी लफ्ज क्या है? साहिल ने कहा मकालिद में आखिरी लफ्ज क्या है? दाल। उधर मीम हा, इधर मीम दाल। अब इन चारों को मिलाओ क्या बन जाता है? मोहम्मद बन जाता है। और जब मोहम्मद बन गया तो इससे मसला हल हो गया कि गैब के खजाने की चाबी, जमीन आसमां के खजानों की चाबी किसी और के पास नहीं, प्यारे मुस्तफा के पास है। और जब प्यारे मुस्तफा के कब्जा वो कुदरत में चाह दिया है तो प्यारे मुस्तफा के कौलो फेल, उनकी सुन्नतों के ऊपर जो जो अमल करते जाएंगे प्यारे मुस्तफा उसको दुनिया आखिरत का बादशाह बना देगा। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और आगे क्या फरमाते हैं? कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो हजरात मोहतरम सिर्फ नाराए तकबीर, नाराए सालत, नाराए गौस, नाराए ख्वाजा, नारा बिना काम के नारा लगान से बात नहीं बनेगी। नारे के साथ साथ जब मैदान में उतर के अमल करेंगे तभी बात बनेगी। तो इंशाअल्लाह ताला सभी लोग कोशिश करेंगे, मैदान में उतर कर अमल करने की कोशिश करेंगे, नमाजों को अपने वक्तों पे अदा करेंगे, चेहरे पे दाढ़ी सजाएंगे, दूसरे की गीबत नहीं करेंगे, छोटों से प्यार करेंगे, बड़ों का अदब व एहतराम करेंगे और हराम गेजा से भी बचने की कोशिश करेंगे। आज हमारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल क्यों नहीं होती? हमारी बात हमारी औलाद क्यों नहीं मानती? हमारी बात हमारे रिश्तेदार, आस पड़ोस के पड़ोसी क्यों नहीं मानते? जानते हैं वजह ये है कि हमारे पेट में हराम गेजा होता है और हराम गेजा से जो खून बनता है और उस खून से जो नस्ल चलती है ना, वो नस्ल सुधरी हुई नहीं होती है, बिगड़ी हुई होती है। तो अगर हम अपनी नस्लों को सुधारना चाहें, हम ये चाहें कि हमारी औलाद हमारी बात माने, हमारा अदब व एहतराम करे, हमारे कहने पर चले, तो हमें भी किसी के कहने के ऊपर चलने की जरूरत है। और हमें किसके कहने के ऊपर चलने की जरूरत है? हम सबको प्यारे मुस्तफा के कहने के ऊपर चलने की जरूरत है। और जब हम प्यारे मुस्तफा के कहने के ऊपर चलना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला सिर्फ हमारी औलाद ही क्या पूरी दुनिया हमारी बात बनती हुई नजर आएगी। ख्वाजा की बात दुनिया क्यों मान रही है? महबूब इलाही की बात दुनिया क्यों मान रही है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात दुनिया क्यों मान रही है? गौसे पाक की बात दुनिया क्यों मान रही है? इसलिए इन हस्तियों ने मुस्तफा की बात को माना है। और जिसने भी मुस्तफा की बात मान लिया, खुदा ने उसकी बात पूरी दुनिया को मानवा दिया। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में कोई किस्म की गलती हो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिम्मेदारान इस्लामी भाई,
پیچھے کے اسلام بھائی جو ہیں آگے تشریف لے آئیں انشاءاللہ اس کا وجہ ابھی ذکر ہوگا اور ذکر کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور دعا کے بعد انشاءاللہ اس کا وجہ کھانا تمام لائٹ ویڈیو بنا لی نا میری تو مزہ آتا بھائی اس میں اصل چیز تو یہی ہے انور نہیں دکھ رہا السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک آنے والی 13 تاریخ کو انشاءاللہ کریم اتم نگر میں مسجد دعوت اسلامی کی فیضان وصال انشاءاللہ وہاں بھی اجتماعی میلاد ہوگا آپ سب سے تشریف لے کر انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ سب نے آنا انشاءاللہ دوسروں کو بھی لے کر آنا انشاءاللہ کریم تو گائز یہ ہمارے صدام بھائی ہے یہ مدنی قافلے سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے پورا پروگرام کروایا ہے یہاں پہ سو بھائی دعوت اسلامی دعوت اسلامی کا پروگرام ہوا تھا آج مسجد میں اور سکسیسفل رہا اچھا تھا ویسے بہت اچھا تھا بھائی اور یہ ہمارے مدنی قافلے والوں نے بھائی بریانی کا انتظام بھی کرا ہے ساحل بھائی جیسے لوگوں کے لیے یہ بےغیرت آدمی یہ دیکھو کھانا اکیلے کھانا شروع بھی کر دیا انہوں نے یہاں ہمارے تھالی والی بھی کیا پانی پیتے ہوئے ڈالوں کوئی آگے سیٹ